So in the previous class we were discussing about the questions based on the limits और finally ये दो क्वेश्चन थे जो डिस्कस करना थे हमें. बोथ आर प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस, स्क्रीनिंग क्वेश्चंस. इनफैक्ट ये 2003 में पूछा गया था, ये 2004 स्क्रीनिंग में पूछा गया था. लिमिट फाइंड आउट करना है. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लिमिट्स ओनली. लिमिट एस टेंड्स टू 0 f of 2h plus 2 plus h square minus f of 2 upon f of h minus h square plus 1 minus of f of 1. It is given that f dash 2 equals to 6 and f dash 1 equals to 4. क्या किया था आपने? f dash 2 is equals to 6 and f dash 1 equals to 4 was given. H tends to 0. If you keep h tends to 0, h tends to 0, it is going to be f of 2 minus of f of 2 0. Or h tends to 0, it is 0 0 1. f of 1 minus f of 1, it is coming in the form of 0 by 0. ये 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है. 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है. सबसे पहला काम किया आपने, जो करना होगा यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया. तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया. लिमिट एस टेंड्स टू 0, f of 2h plus 2 plus h square डिफरेंशिएट किया ऐसे, दैट विल बी f dash of 2h plus 2 plus f dash of 2h plus 2 plus h square into what is the derivative? f of 2h plus 2 plus h square and derivative of that is f dash 2h plus 2 plus h square and then finally derivative of, it's a case of function 2h plus 2 plus h square का derivative जब आप लेंगे it is going to be 2 plus 2h minus of derivative of f of 2 f dash 2 0. कई बार क्या होता है कि f dash 2 की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, तो लगता है कि f of 2 का डेरिवेटिव f dash 2. f of 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू. f(x) कोई भी फंक्शन है और f of 2 की बात कर रहे हैं तो f of 2 इज अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू. x इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 0. उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा. डिवाइडेड बाय, होता है क्या है कि f dash 2 इज अवेलेबल, f dash 1 इज अवेलेबल, तो फट से f dash 2 और ये f dash 1 किया है ना, गड़बड़ हो जाएगा. f dash h minus h square plus 1 into derivative of h minus h square plus 1 is 1 minus 2h and again derivative of f of 1 is 0. अब हमने क्या किया, अर्लियर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0. अब हमने फिर से चेक किया किस फॉर्म में आ रहा है. h tends to 0 की अगर मैं बात करता हूं तो h tends to 0 पे it is 0 here, right? It is 2 0 0. It is finally it is coming in the form of, after keeping the limit, है ना, लिमिट h tends to 0 रखने के बाद में it is coming in the form of f dash 2 twice of f dash 2 divided by h tends to 0 0 0 1. Where is it? कहाँ है स्क्वायर? कहाँ हो गया f dash 2 का स्क्वायर? h tends to 0, it is 0 0, it is f dash 2 और यहाँ पे 0 रखा तो it is only 2, it is 2 into f dash 2 divided by h tends to 0 0 0 1 f dash 1 और h tends to 0 it is 1, it is f dash 1. वैल्यू पुट कर दीजिए दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 2 into f dash 2, that f dash 2 is equals to 6 divided by f dash 1 that is 4. It is nothing but 12 by 4 that is 3. The result is 3. Second question, again previous year JEE screening question. In the second question it was given in the problem that fx is a differentiable function. It was given in the problem that this fx is a differentiable function and strictly increasing function है ना, strictly increasing function है as well as differentiable function है. Again if I look for x tends to 0, x tends to 0 की अगर हम बात करते हैं तो x tends to 0 के corresponding f of 0 minus f of 0 that is 0 divided by, it is coming in the form of x tends to 0 रखने पे it is presently it is taking the form of 0 by 0. ये 0 by 0 का फॉर्म ले रहा है, 0 by 0 का फॉर्म ले रहा है. अगेन यू यूज द एल हॉस्पिटल रूल, फिर से आपने एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया.
तो एल हॉस्पिटल रूल के यूज की जब बात करेंगे हम, दैट इज गोइंग टू बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 0 इज 0, दैट्स द कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव इज 0। प्रॉब्लम में गिवन है एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट तो किया हमने, एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आल्सो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं आप, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, so it is becoming limit x tends to 0, देखिएगा f dash x square into 2x divided by f dash x minus of f dash x upon f dash x, सेपरेट कर दिया f dash x upon f dash x 1, f dash x पॉजिटिव होगा क्योंकि दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि f dash x is going to be positive because it's a strictly increasing function, that's positive value. Point is it's not going to take the form of 0 by 0 again, x tends to 0 पे it is going to become 0 क्योंकि f dash x पॉजिटिव वैल्यू है, f dash x square is also going to be some positive value, multiplied with 0 will become 0 minus 1 and that result is minus 1. So both the questions were based on the L'Hospital rule, simple application of L'Hospital rule, right? क्लियर है, दोनों क्लियर है, सिंपल प्रॉब्लम भाई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, आप लोगों को टाइम दिया सॉल्व करने का, और एवरीबडी इज सेइंग द रिजल्ट इज 1 बाय रूट 2 बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द लिमिट एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, और उस फैक्ट का आपने यहाँ पर यूज किया, यही किया, ठीक है। देखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, it is 2 sin square x by 2 divided by x, ठीक है। it is limit x tends to 0 रूट 2 एंड रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जहां पे आपने गलती किया और सभी लोगों ने गलती किया, रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, उस रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जस्ट रिमेंबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर को कभी एक्स मत लिखिए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ एक्स। हाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड एक्स विल बिकम एक्स, और नेगेटिव वैल्यू है तो इट विल बिकम माइनस एक्स, बट इट इज गोइंग टू बिकम रूट 2, तो ठीक है, रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स। और जब ये मॉड फंक्शन बन जाता है, जब ये मॉड फंक्शन बन जाता है तो हम जानते हैं साइन थीटा का बिहेवियर। अगर मैं बात करूं आपको, इफ आई डिस्कस अबाउट द साइन थीटा, कर्व ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा को अगर आप स्केच करोगे कि थीटा के राइट में देखोगे तो दैट फंक्शन इज पॉजिटिव। साइन थीटा को स्केच करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, और थीटा के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे दैट इज नेगेटिव। सो पॉइंट इज आई हैव टू डिस्कस हियर राइट हैंड लिमिट एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ। मुझे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को चेक करना होगा, और अगर ये दोनों लिमिट्स बराबर आती हैं तब मैं कहूंगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि x टेंड्स टू 0, 0 के राइट और लेफ्ट में फंक्शन डिफरेंट होगा। मॉडुलस, बोले सर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मॉड फंक्शन इज इन्वॉल्व देयर, राइट हैंड लिमिट, आई विल बी कैलकुलेटिंग द राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब आप जानते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 रूट 2 मॉडुलस ऑफ x को रिप्लेस किया आपने 0 प्लस h से, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस h विच इज h, इट इज लिमिट s टेंड्स टू 0, इट इज रूट 2, डेफिनेटली साइन h बाई 2 का मैग्नीट्यूड साइन h बाई 2 ही रहेगा, डिवाइड बाय h, साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एंड साइन थीटा बाय थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, एंड वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट इज 1 बाय रूट 2। बोले हमने भी यही बताया था, ठीक है। इफ आई कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, लिमिट
h टेंस टू 0 √2 टाइम्स x को रिप्लेस करोगे आप, x को रिप्लेस करोगे 0 माइनस h से, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. Sin minus theta is minus sin theta, but if you are taking the magnitude of that, it will become positive. Right? Sin minus theta is minus sin theta, and you are taking the mod of that, so it will become sin h by 2 minus h. Again multiply and divide by 2. Sin theta by theta, that definitely it will become 1, right? Limit h tends to 0, sin h by 2 upon h by 2 is going to be equals to 1 because h tends to 0, so h by 2 also tends to 0. कोई दिक्कत नहीं उसमें, but point is if I calculate the left hand limit, I'm not getting 1 by √2. This minus sign is there, this minus sign is there, I'm getting माइनस ऑफ 1 बाय √2 और बात खत्म हो जाती है यहाँ पर. राइट हैंड लिमिट इज कमिंग एज 1 बाय √2 बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज कमिंग एज माइनस ऑफ 1 बाय √2. दीज टू वैल्यूज आर नॉट सेम. यू आर गोइंग टू से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट इज नॉट 1 बाय √2. ऑप्शन में 1 बाय √2 भी होगा, माइनस 1 बाय √2 भी होगा, कुछ और भी होगा और नन ऑफ दिस भी होगा, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा भी होगा. क्लियर है क्यों ऐसा किया गया है? मॉड फंक्शन इज इन्वॉल्व देयर. मॉड फंक्शन है, सोच समझ के बात करनी होगी आपको कि 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में, ठीक है ना? 0 के राइट एज वेल एज 0 के लेफ्ट में उस फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा ना भाई. साइन एक्स बाई 2 को अगर मैं आपसे कहूँ प्लॉट करने का कर सकते हो आप साइन एक्स बाई 2? बोले सर हमने साइन एक्स सीखा है. क्यों साइन एक्स बाई 2 नहीं सीखा है? व्हाट इज द साइन एक्स बाई 2? साइन एक्स बाई 2 इज हैविंग द रेंज एज -1 to 1. कब ये 0 बन रहा है? एंड व्हाट अबाउट द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन? यू आर अवेयर ऑफ दैट? क्या फंक्शन का पीरियड क्या होगा साइन एक्स बाई 2 का? 4 पाई. और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 0 प्लस में फंक्शन पॉजिटिव है. अगर थोड़ा सा अपना दिमाग में रखते हैं अपन कि कैसे कर्व स्केच होगा साइन एक्स बाई 2 का. 0 प्लस में फंक्शन पॉजिटिव है और 0 माइनस में फंक्शन नेगेटिव है, इसलिए हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट. क्योंकि मॉड में क्या हुआ, मॉड लगा दिया तो नेगेटिव ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव, लेकिन 0 के राइट लेफ्ट में फंक्शन तो डिफरेंट है, इसलिए RHL LHL का डिस्कशन करना होगा. ठीक है, अब इसको ठीक ढंग से ध्यान रखिएगा. लिमिट्स के डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म इनफैक्ट, देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ा है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x raised to power 1 by x that is equals to e. we have discussed and derived also. और इसी का दूसरा फॉर्म था इफ यू रिमेंबर कि यार इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी के साथ साथ इफ इट इज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस lambda x raised to power 1 by x, so you can definitely write it e raised to power lambda. आइडिया है आपको, अच्छी बात है. इसी के एप्लीकेशन की बात है और वो ये बात है कि एक्चुअल में फॉर्म कौन सा x टेंस टू 0 रखने पर इट इज टेकिंग विच ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म. तो x टेंस टू 0 रखने पर इट इज टेकिंग द इंडिटरमिनेट फॉर्म विच इज 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी. 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म ले रहा है ये, ठीक है ना? देखिएगा. तो यस वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, काफी इंपॉर्टेंट. लिमिट x टेंस टू a fx रेज़ टू पावर gx fx रेज़ टू पावर gx और x टेंस टू a रखने पर इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ, इफ इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी. अगर ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है लिमिट रखने पर, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर कहीं कन्वर्ट हो रहा है तो देयर इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच एंड दैट अप्रोच इज बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ओनली. लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e. और मैं आपको बता रहा हूं कि x टेंस टू a रखने पर fx रेज़ टू पावर gx वाला फॉर्म है ये. एंड इफ यू आर गेटिंग अ फॉर्म ऑफ 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, ज्यादा मत सोचिएगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट से उनको अप्लाई कीजिएगा, लेकिन वो डिराइव करके बताता हूं मैं आपको. देखिएगा, सबसे पहला काम किया आपने
1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है ये, तुरंत आपको दिमाग में आया दिस फॉर्म। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, कलाकारी किया, 1 प्लस 1 किया एज वेल एज -1 किया, +1 -1, ठीक है। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। बोले सर ऐसा क्यों, इसे देखिए जरा, 1 + x था तो रेस्ट टू पावर 1/x किया हमने यहाँ पर, है ना। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, जस्ट ऑब्जर्व दिस, इट इज 1 + λx, तो ये 1/x था, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा से डिवाइड किया, सो दैट इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ e रेस्ट टू पावर लैम्डा। प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी। हमने देखा, हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन लिमिट एक्सटेंड्स टू a, थोड़ी सी उठापटक, और वो ये 1 + fx - 1 gx। मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड है यार कि अगर ये 1 + x है तो इट मस्ट बी 1/x। अगर ये 1 + fx - 1 है, fx - 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्म, इजी भी है, समझ में आएगा बिल्कुल। fx - 1 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड, fx - 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। बोले सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सो दैट दिस फॉर्म इज देयर, 1 + fx - 1 रेस्ट टू पावर gx, तो fx - 1 से मल्टीप्लाई, fx - 1 से डिवाइड, किस फॉर्म में आ जाएगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ e रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a। व्हाट इज दैट, लिमिट x टेंड्स टू a, व्हाट इज दैट, e क्या बन गया, 1 + fx - 1 रेस्ट टू पावर 1/fx - 1 बिकम्स e, और उसकी पावर में क्या, दिस इज द पावर ऑफ दैट, e रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx into fx - 1। and point is, if it is in the form of 1 raised to power infinity, if limit x tends to a, fx raised to power gx is coming in the form of 1 raised to power infinity, प्रोसीजर तो पूरी है, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, और fx - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बट यू कैन स्टार्ट विथ, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ दिस 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में, fx रेस्ट टू पावर gx वाला फॉर्म, यू कैन स्टार्ट विथ e रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx into fx - 1। अब डायरेक्टली यहां से बात चालू करेंगे, कैसे, बिकॉज ऑफ दिस स्टेप्स आर देयर, ठीक है। इसको एक एप्लीकेशन लेके समझाता हूं। 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, जो आपको टेस्ट पेपर्स में भी मिलेंगे, पैकेजेस में भी मिलेंगे, और बिल्कुल एक सिंपल सी अप्रोच है 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी में, दैट इज दिस अप्रोच। दाएं बाएं कुछ नहीं सोचना है, इसी को सॉल्व करना है, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। कैसे आया, किस फॉर्म, डेफिनेटली है 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, है ना। अब देखिए इसके एप्लीकेशन वाली बात, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेस्ट टू पावर x प्लस 4 रेस्ट टू पावर x डिवाइडेड 2 एंड होल रेस्ट टू पावर x। राइट, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 की जब हम बात करेंगे तो x टेंड्स टू 0 में 3 रेस्ट टू पावर 0 1, 3 4 रेस्ट टू पावर 0 1, 1 + 1 2, 2/2 1। प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म, 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म। प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, और है ना, लिमिट रखने पे ये 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म ले रहा है, और ये 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट्स टेंड्स टू 1 लिमिट रखने के उपरांत, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx रेस्ट टू पावर gx, आपने देखा कि 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ये स्टेप्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, एंड यू स्टार्टेड विथ e रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx into fx - 1। what is gx here, this is gx, fx raised to power gx, 2/x is gx there, right, so it is 2/x, 3 raised to power x plus 4 raised to power x divided by 2 minus 1, gx into fx - 1,
है ना, मल्टीप्लीकेशन में। नाउ इट्स नॉट इन पावर, कैसे? दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। बोले सर आगे क्या, आगे क्या वो भी देख लीजिएगा। e raised to power limit x tends to 0 2 by x, take the LCM। LCM जब आपने लिया तो इट विल बिकम 3 raised to power x plus 4 raised to power x minus 2 divide by 2, right? 3 raised to power x plus 4 raised to power x minus 2 divide by 2। बोले सर क्या करना है इसका? हाँ, कुछ भी मत बोलिए, मतलब इसमें ये पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x, that is nothing but log a raised to power x। तुरंत दिमाग में आना चाहिए 3 raised to power x 4 raised to power x 3 raised to power x plus 4 raised to power x minus 2 upon 2। उसको अरेंज कर लो, कैसे देखो, कुछ ऐसे। और रीजन क्यों है ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है? देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to power x minus 1 upon x is log a। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल्स टू e raised to power लिमिट x टेंड्स टू 0, अरेंज कर दिया इस x को, 3 raised to power x minus 1 डिवाइड बाय x प्लस 4 raised to power x minus 1 divide by x। Limit x tends to 0 a to the power x minus 1 upon x is log a, it will become in fact e raised to power log a is 3 here, plus limit x tends to 0 4 to the power x minus 1 upon x, that is log 4। clear है? log m plus log n, definitely it can be written as e raised to power log 12, and it can be definitely written as 12 e raised to power log a with base e, डायरेक्टली हम उसको 12 लिखेंगे। क्लियर है स्टेप्स? देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। 1 raised to power इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, तुरंत आपको दिमाग में आ गया e raised to power limit x tends to a gx into fx minus 1, gx into fx minus 1, take the LCM। LCM लेने के बाद जो लिमिट साफ साफ दिमाग में आ रही है a to the power x minus 1 upon x, और उसको अरेंज कर लिया बस सिंपल। तो 3 raised to power x minus 1 upon x log 3, 4 raised to power x minus 1 upon x log 4, log m plus log n log mn log 12, and that final result is 12। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्म। नाउ लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। x टेंड्स टू 0 1 raised to power x plus 2 raised to power x up to n raised to power x upon n raised to power a by x। x tends to 0 पर it is becoming 1 plus 1 plus 1 up to n times, that is n upon n, that is 1, and 1 raised to power infinity। एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी देख लें हम, x टेंड्स टू पाई बाय 4 2 minus 10x, 10 पाई बाय 4 is 1, 2 minus 1 that is 1, 10 पाई बाय 4 is 1, log 1 will become 0, 1 by 0 will become undefined। both the questions are in terms of in form of 1 raised to power infinity, दोनों 1 raised to power infinity के फॉर्म में सेम अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं। इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx raised to power gx। हम बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचने का, डायरेक्टली वी कैन राइट e raised to power लिमिट x tends to 0 gx into gx is a by x, gx into fx minus 1। ठीक है, अगेन टेकन द एलसीएम, इट विल बिकम माइनस ऑफ n आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, और माइनस n है 1 raised to power x 2 raised to power n raised to power x दिख रहा है, इन टर्म्स दिख रही हैं आपको, सबको आप अरेंज कर लोगे इन टर्म्स ऑफ a to the power x minus 1 upon x के टर्म्स में, सीधी सी बात है।
और ये जो n है माइनस ऑफ n जो होगा वो n को आप डिवाइड कर लोगे या 1 1 1 1 1 n टर्म्स में स्प्लिट कर लोगे, जैसा भी आप कहें। e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a, sorry x टेंड्स टू 0, this x is already there, taken the LCM, e by n 1 raised to power x minus 1 plus 2 raised to power x minus 1 plus up to n raised to power x minus 1, right, and divide by x। मतलब सर ये x कहाँ से आ गया, x है ना प्रॉब्लम में, इट इज a बाय x, तो इस x को ब्रैकेट में ले लिया और n इज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया उसको। अभी तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x minus 1 upon x is nothing but log a, so it will become, after taking the limit it will become e raised to power a by n is there, जैसा है वैसा रहेगा a by n तो, और लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू 0 लेने पर it will become log 1 plus log 2 plus log 3 and up to log n। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो क्लियर है, log 1 plus log 2 plus log 3 up to log n, एडिशन में टर्म्स हैं, इट विल कम इन द मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी e रेज़ टू पावर a by n log 1 plus log 2 plus log 3 up to log n, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड अप टू n। डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख दूं, ln ऑफ n फैक्टोरियल, कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको, एडिशन में टर्म्स हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इट कम्स इन मल्टीप्लिकेशन, log 1 2 3 4 एंड अप टू n, 1 2 3 4 up to n is nothing but n factorial, this a by n is here, that will become e raised to power ln n factorial raised to power a by n, and definitely that result is n factorial raised to power a by n। प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें दो टर्म्स थी, 3 रेज़ टू पावर x प्लस 4 रेज़ टू पावर x, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देयर आर n टर्म्स। अप्रोच में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, अप्रोच तो सेम ही रही, राइट। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म था, आसानी से बनाया। कैन यू टेल मी द रिजल्ट फॉर द सेकंड? 1 बाय e, हाँ 1 बाय रूट e। चलिए करिए जरा, सॉल्व करके बताएं सेकंड वन, just based on the same approach, 1 raised to power infinity, just proceed। वन बाई ई चेक करते हैं। नाउ द सेकंड वन, x टेंड्स टू पाई बाय 4, आपने कंफर्म किया कि प्रेजेंटली इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी तो सेम वे में आप प्रोसीड कर रहे हैं, इट इज e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, x टेंड्स टू पाई बाय 4 gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। व्हाट इज दैट gx? gx इज 1 अपॉन ln 10x into fx minus 1, so fx minus 1 will become what, 2 minus 10x minus 1, fine, it will become e raised to power limit x tends to pi by 4, 2 minus 1 that is 1, presently it is taking the form of 1 minus 10x अपॉन ln 10x। अभी कौन सा फॉर्म हो गया, x टेंड्स टू पाई बाय 4 पे प्रेजेंटली सॉल्व नहीं हुआ, अभी x टेंड्स टू पाई बाय 4 पे प्रेजेंटली इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 by 0, 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 minus 1 0, 10 पाई बाय 4 इज 1, ln 1 इज 0, 0 by 0 का फॉर्म हुआ। ये दो रास्ते हैं आपके पास में, यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल हियर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड बोर्ड एग्जाम नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम है तो फिर हम
नॉर्मल वे से प्रोसीड करेंगे विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 माइनस 10x को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। इफ चलो हम दोनों टाइप से देखते हैं क्या दिक्कत है। दोनों टाइप से सिखाने का पर्पज ये है कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो टुवर्ड्स लिमिट। आपको सारी अप्रोच, आपका दिमाग खुला रहे, सर हर अप्रोच समझ में आ रही है, दैट इज पॉइंट है ना। देखें जरा, अगर हॉस्पिटल यूज करते हैं क्या मिलता है, e रेज़ टू पावर 5/4 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेटली। कई बार क्या होता है बच्चे इसको क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट कर मारते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है ना। वो एल हॉस्पिटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली। 1 माइनस 10x डेरिवेटिव ऑफ दैट इज माइनस ऑफ sec square x डिवाइडेड बाय ln 10x डेरिवेटिव ऑफ ln 10x इज 1/10x into sec square x। ठीक है, दैट इज अबाउट द एल हॉस्पिटल रूल। ये sec square x कैंसिल हुआ। अभी जरा लिमिट डाल देते हैं, देखते हैं कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, किसी प्रकार का कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। 10π/4 इज 1 e रेज़ टू पावर -1 टू पावर -1। ठीक है, ठीक है, दैट इज यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। आप जरा ट्राई कीजिए विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तब भी बना लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बना सकते हैं, करिए। Again 2 questions based on the same 1 raised to power infinity form. Limit x tends to 0, 1 plus ax plus b raised to power 2 by x is given as e cube. And ये और आपसे पूछा गया है find a and b. For this question limit is provided to you as e cube. Finite limit है e cube और आपसे कहा गया है a b find out करें। The second question you have to evaluate the limit. For the first one x tends to 0 जब आपने ऑब्जर्व किया x tends to 0 पर क्लियरली इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 1 raised to power infinity और 1 raised to power infinity का फॉर्म ले रहा है, तो तुरंत आपको अप्रोच आइडिया और उसको आपने फॉलो किया। इट इज बिकमिंग e raised to power लिमिट x tends to 0 2 by x 1 plus ax plus bx square gx into fx minus 1। ठीक है, gx into fx minus 1 it is e raised to power and that limit is equals to e cube। आइडिया है आपको ऑलरेडी पता है लिमिट e क्यूब के बराबर है और भी बताना है आपको। तो इट इज बिकमिंग e raised to power लिमिट x tends to 0 twice of ax plus bx square। x कॉमन लेके कैंसिल कर दें, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इट विल बिकम a plus bx is equals to e क्यूब, कोई परेशानी नहीं। e की पावर है और यहां भी e की पावर है। वी कैन डेफिनेटली राइट लिमिट x tends to 0 twice of a plus bx is equals to e cube, sorry not e cube, is equals to 3। yes 3। a और b पूछा है उसने आपसे, एक सिंपल सी बात है और आपको अब दिक्कत नहीं होगी, काफी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ a प्लस bx इक्वल्स टू 3। x टेंड्स टू 0 पर bx तो हमेशा 0 बन जाएगा। x टेंड्स टू 0 पर bx तो हमेशा 0 बनेगा, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ bb। दैट मीन्स b डेफिनेटली कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। b की वैल्यूज कुछ भी रियल वैल्यू हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि x टेंड्स टू 0 रख रहे हो तो इट इज बिकमिंग 0 ऑलवेज, राइट। एंड फाइनली इट इज 2a इक्वल्स टू 3, सो a इक्वल्स टू 3/2। तो रिजल्ट इज a इक्वल्स टू 3/2 एंड b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लुक फॉर द सेकंड वन। आई थिंक क्लियर है सभी लोगों को 1 raised to power infinity। सेकेंड क्वेश्चन में भी अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 1 log 1 is 0 10π/4 is clearly 1 log 1 is 0 1/0 infinity, again it is taking the form of 1 raised to power infinity। सेकेंड क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट, और डाउट नहीं है तो तुरंत हमने इसको सॉल्व करना चालू किया। e raised to power
लिमिट x टेंड्स टू 1 gx, दैट gx इज 1 बाय log x हियर इंटू एफ एक्स माइनस वन। दोस्तों एफ एक्स माइनस वन लिखते समय एक छोटी सी कलाकारी मैंने करी है, यहाँ पर टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। किसी को परेशानी तो नहीं होगी? टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो दैट इज जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन कर रहे हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑल्सो। फॉर्मूला भी यूज कर लिया, वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन माइनस लॉग एक्स माइनस वन। चेक करिए ठीक लिखा, कुछ गड़बड़? सॉरी 10 तो गायब हो गया, गड़बड़ी गड़बड़। सो 10a प्लस 10b, 1 प्लस इट इज 10 ऑफ log x, ठीक है भैया, अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ log x माइनस ऑफ 1, राइट, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10 5 by 4 is 1, तो अभी ठीक है। टेक द एलसीएम एंड इफ यू टेक द एलसीएम लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 by log x, 1 1 कैंसिल होगा, इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ 10 ऑफ log x divided by, after taking the LCM, it is 1 minus 10 of log x। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? बोले सर क्या कर दिया? कुछ नहीं, LCM लिया है बस। LCM लिया तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, ट्वाइस ऑफ 10 ऑफ log x अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ log x। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या किया जाए? बोले सर अब क्या करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। x टेंड्स टू 1 की बात करें, एक फैक्ट जो देख लीजिएगा, x टेंड्स टू 1 की बात करें तो इफ आई ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर फैक्टर, x टेंड्स टू 1 पर log 1 इज 0। देख रहे हैं सभी लोग क्या? x टेंड्स टू 1 log 1 0, 10 ऑफ 0 0, इट इज बिकमिंग 1। तो एज फार एज दिस फैक्टर इज कंसर्न इसका टेंशन नहीं, 1 माइनस 10 ऑफ log x इज बिकमिंग 1, दैट्स अ फाइनाइट लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया 1। अब हमें ऑब्जर्व करना है ट्वाइस ऑफ 10 ऑफ log x अपॉन log x को। एक सीधी सी बात है x टेंड्स टू 1 के ऊपर, इफ x टेंड्स टू 1 log 1 इज 0, log 1 इज 0, 10 0 0, पॉइंट इज yes we are aware of a standard form and that standard form is limit theta tends to 0, tan theta by theta is 1। बेसिक रिजल्ट है tends to 0, tan x by x 1। बोले हाँ सर इसकी क्या खास बात है? That's what we have used here। उसी बात को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि to 1, ये समझ में आना चाहिए बात आप लोगों को, 10 ऑफ log x अपॉन log x, क्या लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं क्या? और बोले सर कैसे, ये तो बहुत अजीब सा है। अजीब सा नहीं, वैसा ही है। x टेंड्स टू 0 पर इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 by 0, x टेंड्स टू 1 पर इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 by 0। बाय द वे और ज्यादा समझना है तो टेक log x इक्वल टू t, log x को t ले लीजिए, x टेंड्स टू 1, log x को आपने t लिया है तो x टेंड्स टू 1 तो t टेंड्स टू 0, you will be getting the same form, limit t tends to 0 10 t upon t। आ रहा है ना समझ में? Point is it will become 10 of log x upon log x will become 1। It is already 1 after keeping the limit, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। It is taking a finite value directly 1। क्या बच रहा है? What is the remaining term there? E square। Result is E square। All those questions we have discussed based on 1 raised to power infinity, and the point is whenever you are getting this type of form 1 raised to power infinity, just go for e raised to power limit x tends to a gx into fx minus 1, आएगा रिजल्ट, आना ही है। तो 1 raised to power infinity में ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये भी, राइट? प्लीज नोट डाउन दिस। सो अगेन आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन लिमिट फाइंड आउट करना है, सेकंड में भी लिमिट फाइंड आउट करना है, और जो सेकंड में रिजल्ट है दैट रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, स्मॉल एफ एक्स एंड
जी एक्स। इंटरेस्टिंग है, दोनों सवाल बढ़िया हैं। फर्स्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें, प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म? प्रेजेंटली इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी के टर्म्स में तो नहीं है। x टेंड्स टू 0 की अगर बात करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर इट इज बिकमिंग व्हाट? cosec 0 अनडिफाइंड। यहीं पर बात इन्फिनिटी 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 के टर्म्स में आ रही है, और साइन 0 0 इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 टाइप का कोई फॉर्म बन रहा है। इट इज नॉट 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, कुछ अलग सोचना होगा। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी में, और रीजन क्या है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का वो भी आपने समझा, कहां से डिराइव किया था आपने? क्या लगता है आपको क्या अप्रोच होना चाहिए? एनीबॉडी? वन रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, 2 रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, लॉग। अच्छा, लॉग लेना, लॉग लेने से कोई पर्पस बहुत ज्यादा सॉल्व होने वाला नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स विल बिकम इन द मल्टीप्लीकेशन, कम साइन स्क्वायर एक्स कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, बट लॉग ऑफ 1 रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर, ये सारी टर्म्स तो एडिशन में, तो लॉग हेल्प नहीं कर पाएगा यहाँ पे, है ना? क्योंकि लॉग लेंगे आप तो साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, उतना ठीक है, लेकिन लॉग ऑफ 1 रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 रेज़ टू पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, all these terms are in addition, it's not going to help you. देखिएगा 1 रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स, और अप्रोच आपको जरूर समझ में आ जाएगी। इट इज अगेन फॉर द सेकेंड टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस। एक छोटे से सवाल में हमने उस बात को डिस्कस किया था, और अब इसको देखिएगा 1 2 3 4 एंड अप टू n, तो डेफिनेटली n इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। हमने क्या किया? वी हैव टेकन n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स कॉमन आउट ऑफ दिस, n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स पूरे ब्रैकेट से कॉमन ले लिया। वैसा क्यों किया उसकी बात भी कर रहे हैं। n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, पावर इज साइन स्क्वायर एक्स देयर। भाई होल रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स है, तो n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स आपने कॉमन लिया है, उसकी पावर साइन स्क्वायर एक्स। मतलब सर ऐसा क्यों? क्या देखिएगा, इट विल बिकम 1/n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स, पहले समझ लीजिएगा, प्लस 2/n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स, एंड अप टू इट इज n माइनस 1 डिवाइड बाय n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स, प्लस n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स आपने कॉमन ही लिया है, इट विल बिकम 1 एंड होल रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आई क्या? जो स्टेप लिखिए क्लियर है? n रेज़ टू पावर cosec स्क्वायर एक्स यू टेकन कॉमन। मतलब ऐसा क्यों? 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, n minus 1 upon n, all these are फ्रैक्शनल वैल्यूज। ये सारी वैल्यूज फ्रैक्शनल वैल्यूज है, क्योंकि n तो ग्रेटेस्ट है इन सब में। 1/n, 2/n, 3/n, 4/n अप टू n minus 1 upon n, ऑल दीज आर फ्रैक्शनल वैल्यूज। और दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू और x टेंड्स टू 0 रखने पर इट इज cosec 0 इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, या cosec स्क्वायर x इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। हमारी बात तो बन गई, फ्रैक्शनल वैल्यू एंड रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0। आ रही क्या बात समझ में आपको? cosec स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, n इज देयर, 1/n, that's a fractional value raised to power infinity, it tends to infinity, will become 0 plus 0 plus 0, this 1 is there, and sin 0 is also equals to 0. That result is simply 1, दो स्टेप का प्रॉब्लम है। बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और कंसेप्ट भी पहली बार डिस्कस नहीं किया है। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप, आई थिंक a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर 1/n, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। and it was given in the problem that both values are positive values,
previous class only we have discussed this question. So b is greater than a, so a by b is clearly a fractional value. That's what we have used here. And for that, limit n tends to infinity, b raised to power n को हमने कॉमन लिया, तो b raised to power n को कॉमन लिया, raised to power 1 by n, that will become b into a by b raised to power n plus 1 whole raised to power 1 by n. Right? A by b is a fractional value. Fractional value tends to infinity. Raised to power infinity will become 0. 0 plus 1, 1. 1 raised to power 0 is 1. Multiplied with b is b. ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं और इनफैक्ट इसी कंसेप्ट का तो यूज यहां पर भी किया गया. सेम कंसेप्ट इज हियर. यू हैव टेकन n raised to power cosec square x कॉमन आउट ऑफ दैट. पहली बात तो 1 raised to power infinity फॉर्म तो था नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट फॉर्म. n raised to power cosec square x को कॉमन लेने के पीछे रीजन ये था कि हमारे दिमाग में चल रहा था कि 1 by n, 2 by n, 3 by n, 4 by n, n by n minus 1 upon n, ऑल दोज आर सम फ्रैक्शनल वैल्यूज. और फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर अगर आप इन्फिनिटी की तरफ रेज करोगे तो दैट विल टेंड्स टू 0, एंड दैट्स द पॉइंट वी हैव यूज्ड हियर. राइट? प्रॉब्लम तो 2 स्टेप का ही है लेकिन कंसेप्ट बढ़िया है. नाउ थिंक अबाउट द सेकंड वन. सेकंड भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. सेकंड में जो रिजल्ट है लिमिट फाइंड आउट करने के बाद में वो fx और gx के टर्म में. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. fx is equals to limit n tends to infinity x raised to power 2n fx plus gx upon x raised to power 2n plus 1. मैंने आपसे कहा था कुछ सॉल्व करके बताएं आप, तो इतना तो आप लोग सोच सकते थे शायद इस क्वेश्चन की जहाँ तक बात करी जाए. n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n टेंस टू इन्फिनिटी जो कहीं ना कहीं जो दिमाग में आता है और वो ये आता है कि सर प्रेजेंटली इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, कुछ ऐसा दिमाग में आता है. और हम ये जानते हैं कि यार समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0. तो जब यूजुअली जब बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो वो कुछ इस ढंग से ट्राई करते हैं. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर 2n को कॉमन लिया और x रेज़ टू पावर 2n को कॉमन लिया, so it is fx gx upon x raised to power 2n divided by x raised to power 2n plus 1 upon x raised to power 2n. राइट? ये ऑब्वियस रिजल्ट है जिसको कैंसिल करना है जरूर कर सकते हैं हम लोग. नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बोले सर समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0, gx upon infinity will become 0 plus fx 1 by x raised to power n x raised to power 2n will become 0 1, and that fx is coming as small fx. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रिजल्ट तो है लेकिन ये अधूरा रिजल्ट है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हम बात करेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि लिमिट्स में एज वेल एज कंटिन्यूटी में ये कंसेप्ट बहुत काम में आएगा. x रेज़ टू पावर 2n अगर हमने ऐसा सॉल्व किया, फिलहाल आप में से कई लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बट अगर हम इस ढंग से सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं कुछ एरर हो रही है इसमें. और वो एरर ये है कि अभी हमने ये कंसिडर कर लिया कि x रेज़ टू पावर 2n n टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी टेंड कर रहा है. तब ये ठीक था, तब ये ठीक है, ये रिजल्ट ठीक है. दैट fx रिजल्ट इज करेक्ट प्रोवाइडेड फॉर n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर 2n इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देन इट्स रिजल्ट इज ओके. तभी रिजल्ट ठीक ठाक है. राइट? लेकिन ऐसा तभी होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी it is x raised to power 2n. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x raised to power 2n, दिख रहा है ना मालविका? क्लियर? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x raised to power 2n that is equals to लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x square raised to power n.
x रेज टू पावर 2n है, दैट इज x स्क्वायर रेज टू पावर n, और x स्क्वायर इज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू। और ये कंसेप्ट कई सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल रहेगा। इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, अगर x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, if x square is greater than 1, in that case, if it is value which is greater than n, और उसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी रेज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, then that limit tends to infinity. For n tends to infinity, this tends to infinity. Limit n tends to infinity के लिए जो रिजल्ट है, let's say this is some gx, then this gx tends to infinity. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए पावर अगर इन्फिनिटी की तरफ रेस करेंगे, लिमिट टेंस टू 0 अभी अभी यूज किया था आपने, देन टेंस टू 0, 0 वैल्यू हो जाएगी। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इफ इट इज एग्जैक्टली 1, और उसकी जो पावर करना है कर लो, दैट रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, वो हमेशा 1 रहेगा। और ये बात कभी मत भूलिएगा। एंड यस, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। तो ये रिजल्ट ठीक है, दैट रिजल्ट इज स्मॉल एफ एक्स इज करेक्ट प्रोवाइडेड दिस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अगर एक्स स्क्वायर, तो हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, gx इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, दैट मीन्स इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो x to the power 2n टेंस टू इंफिनिटी, है ना। तो x to the power 2n टेंस टू इंफिनिटी, तो x to the power 2n न्यूमरेटर से कॉमन लिया, x to the power 2n डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी को 0 बना लिया हमने, राइट। दैट रिजल्ट इज एफ एक्स। लेकिन इफ या फॉर एक्स स्क्वायर इज एग्जैक्टली 1, यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर एग्जैक्टली 1 है तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी 1 ओनली। इन दैट केस द रिजल्ट इज, आफ्टर कीपिंग द लिमिट रखने के बाद x रेज़ टू पावर 2n विल बिकम 1, इट इज बिकमिंग fx प्लस gx अपॉन 1 प्लस 1 इज 2। x रेज़ टू पावर 2n बिकम्स 1। ये बहुत क्लियर कट इसलिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2, एंड द थर्ड वन फॉर एक्स स्क्वायर इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 से 1 के बीच में अगर एक्स स्क्वायर है, उस केस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर 2n बिकम्स 0। समझ रहे हो इस बात को आप? ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू एफ एक्स 0, 0 प्लस जी एक्स अपॉन 0 प्लस 1। दैट रिजल्ट इज जी एक्स। और ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, देयर आर 3 रिजल्ट्स एंड दोस 3 रिजल्ट्स आर, वन इज एफ एक्स, वन इज एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 एंड वन इज जी एक्स। और दोस्तों इसको भी और क्लियर करें, जी एफ एक्स कब रिजल्ट है? फॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, सो एफ एक्स रिजल्ट है, पहले समझ लीजिए। दैट रिजल्ट इज एफ एक्स फॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दैट रिजल्ट इज एफ एक्स फॉर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to infinity. For x square equals to 1, this result is valid for x equals to plus minus 1. For x square less than 1 या x square 0 से 1 के बीच में अगर है,
तो उस केस में so this is the result, क्या x square 0 से 1, मतलब x is what, -1 to 1. So yes, you are getting 3 results here. One is fx, one is fx plus gx by 2 and the third one is gx. क्लियर है? और ऐसा क्यों हुआ, ये डिटेल उसका रीजन है, और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. तो ऐसा नहीं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू. दिस x रेज़ टू पावर 2n, इफ दिस वैल्यू दैट x स्क्वायर, ये ना पॉजिटिव तो होना चाहिए, तय बात है. नेगेटिव वैल्यू की रियल पावर वन डिफाइंड हो जाएगा या नॉट डिफाइंड है. दैट इज द रीजन दैट इट इज x रेज़ टू पावर 2n. एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है और उसकी पावर इन्फिनिटी रेज करोगे तो वो 0 बनेगा. एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 है तो इट विल बिकम 1, और एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 है और उसकी पावर इन्फिनिटी रेज करोगे तो वो इन्फिनिटी बनेगा. एंड दीज आर द 3 केसेस. समझ में आ गया? वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आज जो भी डिस्कशन किया है सब कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है ये, और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x into 1 plus a cos x minus b sin x upon sin cube x equals to 2. काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जहां पर लिमिट एक फाइनाइट नंबर गिवन है, यहाँ पर फाइनाइट नंबर 2 गिवन है, और आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b. a और b फाइंड आउट करना है. एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और दोनों अप्रोच बहुत ध्यान से देखिएगा. दोनों अप्रोच बहुत ध्यान से देखिएगा. वन इज the application of L'Hospital rule which is permitted in JEE exam, जो कि JEE में permitted है. और अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव एग्जाम होती है, अगर सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखना होता है, उस केस में L'Hospital rule is permitted, that is given in the syllabus, आप उसी को फॉलो करिएगा. बट इफ इट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम देयर इज वन मोर अप्रोच, और मैं डिस्कस करूंगा उसे भी. बट सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक अप्रोच है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ L'Hospital रूल. पहले उसके ऊपर बेस्ड बात करें, और इस एक क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये बात भी तय है. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x into 1 plus a cos x minus b sin x upon sin cube x. Presently it is in which form? x tends to 0 पर clearly it is in the form of 0 by 0. बोले सर ठीक है L'Hospital लगा देते हैं. L'Hospital लगाने से पहले लगाएंगे हम, L'Hospital लगाना होगा हमें, लेकिन L'Hospital रूल लगाने से पहले सबसे पहले काम करिए. x टेंड्स टू 0 है एंड इट इज sin क्यूब x, तो सबसे पहला काम करिए x क्यूब से मल्टीप्लाई और x क्यूब से डिवाइड, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x बिकम्स 1. समझ रहे हैं इस बात को? इस sin क्यूब x को सीधे सीधे रास्ते से हटाइए आप, x क्यूब से मल्टीप्लाई x क्यूब से डिवाइड करते हुए. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर आप डायरेक्टली लिमिट प्लेस करके इस वैल्यू को 1 बना सकते हैं. दैट्स अ फाइनाइट वैल्यू 1. ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ रहा है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक पर्टिकुलर पार्ट ये इफ सब्ट्रैक्शन में और एक फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट है और एक में फाइनाइट में वैल्यू रख दी, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम. लेकिन ये डिवीजन में है ये, तो इसको सेपरेटली हम लिमिट रख के 1 बना सकते हैं. तो साइन क्यूब एक्स वॉज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा बाय थीटा 1 का यूज किया हमने वहां पर. ठीक है, and now it's x cube. Presently again it is in the form of 0 by 0, और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत, because I am going to use here the L'Hospital rule, and again I am advising you that if subjective exam is there, please use L'Hospital rule. Limit x tends to 0. According to L'Hospital rule, L'Hospital रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर. न्यूमरेटर की बात करें, ध्यान से देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस a टाइम्स x cos x. एक x cos x में आप क्या करेंगे, तो x cos x में आप अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप यहां पर. तो x cos x में आपने डिफरेंशिएट किया यूजिंग प्रोडक्ट रूल. x cos x, x इंटू माइनस ऑफ साइन x
प्लस कॉस एक्स, राइट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन, भाई एक्स इज देयर इन द मल्टीप्लीकेशन, या तो दोनों को अलग अलग करते, मैंने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस ए इंटू एक्स कॉस एक्स, तो दैट इज ए टाइम्स एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। लिमिट क्या है? लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर 2, लिमिट एक फाइनाइट नंबर है विच इज 2। x टेंड्स टू 0 पर प्रेजेंटली इट इज टेकिंग विच फॉर्म? अब ये बात जो मैं बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मत लिखिए भाई आप कुछ भी। x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 पर डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0। न्यूमरेटर को देखें जरा, इट इज 1 ईयर, 1 तो जैसा वैसे ही रहेगा। x टेंड्स टू 0 पे दिस टर्म विल बिकम 0, cos 0 is 1 minus of cos 0 is 1, b will be there। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? x टेंड्स टू 0 रखने पर if I keep x टेंड्स टू 0, what you are getting there? x टेंड्स टू 0 रखने पर you are getting 1 plus a minus b। ठीक सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि cos 0 will become 1 और sin 0 will become 0। अब एक परेशानी खड़ी हुई है हमारे सामने, न्यूमरेटर इज बिकमिंग सम 1 प्लस ए माइनस बी, बट डिवीजन में आ रहा है 0। अब रिजल्ट इज अ फाइनाइट वैल्यू 2, रिजल्ट जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, 2 के बराबर है। एक बहुत सिंपल सी बात है, 1 प्लस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 1 प्लस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तुरंत आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों? वाई 1 प्लस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0? द रीजन इज, अगर मान लीजिए ये 0 नहीं है, इफ इट इज नॉट 0, अगर ये 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर में तो 0 है, समथिंग अपॉन 0 विल बिकम अनडिफाइंड। लिमिट अनडिफाइंड नहीं है, लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर 2 देयर। लिमिट एक फाइनाइट नंबर है 2, इट्स नॉट अनडिफाइंड। और अगर 1 प्लस ए माइनस बी 0 नहीं हुआ तो अनडिफाइंड बना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब, ये कंपलसरी है कि लिमिट एक फाइनाइट नंबर 2 होना है, इसका मतलब 1 प्लस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। बोले सर क्यों 0? सो दैट अगेन इट विल टेक द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0, सो दैट अगेन यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं बनेगा तो खेल बिगड़ जाएगा, समथिंग अपॉन 0 विल बिकम अनडिफाइंड। हो नहीं सकता क्योंकि लिमिट तो फाइनाइट नंबर है, एंड दैट इज द रीजन दैट 1 प्लस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। बोले सर अब क्या करेंगे? आपने बोल दिया 1 प्लस ए माइनस, नाउ इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0 अगेन। इसको लेना होगा फॉर्म 0 बाय 0, अदरवाइज 0 बाय 0 नहीं लेगा तो अनडिफाइंड बना देगा लिमिट। और 0 बाय 0 का फॉर्म लेगा तो एक बार फिर आप अप्लाई करेंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर 6x, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, इट इज a टाइम्स माइनस ऑफ x sin x प्लस a टाइम्स cos x माइनस b टाइम्स cos x। चलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कर ही लेते हैं। a टाइम्स दोस्तों माइनस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लूंगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, राइट, माइनस ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन नहीं सिखाना होगा आप लोगों को ना, प्लस ए टाइम्स ए कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ बी कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। डायरेक्ट लिख दूं? मत लिखिए ना, आप क्यों लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं पाएंगे। cos x का डेरिवेटिव दिस इज b इंटू माइनस ऑफ साइन x।
इज इक्वल्स टू 2। ये अप्लाई किया हमने एल हॉस्पिटल रूल। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब जरा टर्म्स को सेपरेट कर लिया जाए। जो टर्म्स है न्यूमरेटर में, एक कुछ टर्म्स है साइन एक्स की और कुछ टर्म्स है कॉस एक्स की। देखिए जरा मुझे बताइएगा, अलॉन्ग विद साइन एक्स व्हाट यू आर गेटिंग देयर? माइनस ऑफ ए, इट्स माइनस ऑफ ए प्लस बी, फाइन, सॉरी, that is along with sin x into, what about along with cos x? There is only one term, minus of ax cos x, right? और डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में चल रहा है यहां पर 6x। लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर 2। सेपरेट कर लिया ऐसे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इट इज माइनस ए माइनस 2b माइनस 2a प्लस b साइन एक्स अपॉन 6x माइनस ऑफ ax cos x अपॉन 6x and that is equals to, limit is a finite number 2। ये सब कुछ 2 के बराबर चल रहा है, राइट? सेपरेट कर लिया उसे। x से x कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। x टेंड्स टू 0, sin x by x is clearly 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x is 1। और ये cos 0 1। फाइनली वी आर गेटिंग minus of 2a plus b divide by 6 minus of a by 6 is equals to 2. It is becoming minus 2a minus a minus 3a plus b divide by 6 equals to 2। प्लस माइनस जरूर चेक करते जाइएगा, कहीं कुछ एरर हो तो। Finally, you are getting 2 equations। ठीक है ना, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। लिखना नहीं है आपको, केवल करना है। अभी मेरे यहाँ पे जो किया उसको जस्ट देख लीजिए, प्लस माइनस और 2 3 4 कहीं कुछ मेडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं कुछ एरर तो नहीं है। वन ऑफ द इक्वेशन इज 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन विच यू आर गेटिंग एज माइनस 3a प्लस b अपॉन 6 इक्वल्स टू 2। सो यू आर गेटिंग द 2 इक्वेशन, 1 प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0 and minus 3a plus b equals to 12 to equation 2 unknown, you are going to get the values of a and b। a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, ठीक है? अब इसको जरा नोट कर लीजिए। गिव मी द वैल्यूज ऑफ a and b and again I will explain you and then we'll be looking for one more approach which is relatively easier than this, yeah, which is relative प्लीज somewhat easier, yes, you can say somewhat less lengthy, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स लग रही हैं। सोचिए जरा। So limit is given to you as a finite number 2 and you have to find out values of a and b. Presently this question we have solved with the help of L Hospital rule। L Hospital rule की हेल्प से सॉल्व किया है। और ये ध्यान रखिएगा कि अप्रोच आपने एक इस क्वेश्चन में सीखी है, लेकिन ये अप्रोच कई सारे क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑब्जर्व किया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट रखने पर इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 by 0। साइन क्यूब एक्स वॉज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1 बना लिया। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से डिवाइड, एंड देन वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन अब आपके लिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। डिफरेंशिएशन करने के बाद जब हमने एक्स टेंड्स टू 0 रखा, तो x टेंड्स टू 0 जब रखा हमने, तो वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर 0 बट वी आर नॉट गेटिंग न्यूमरेटर 0। x टेंड्स टू 0 रखने पर हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स रिमेनिंग है, लाइक 1 प्लस a माइनस b। तो न्यूमरेटर में आफ्टर कीपिंग द लिमिट वी आर गेटिंग 1 प्लस a माइनस b, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0। अब परेशानी ये है
कि अगर 1 प्लस ए माइनस बी 0 नहीं हुआ तो समथिंग अपॉन 0 विल बिकम अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड हमारी लिमिट है नहीं, लिमिट है फाइनाइट नंबर 2, इसलिए कंपलसरी है कि 1 प्लस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 0, 1 प्लस ए माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, और ये तब 0 बाय 0 का फॉर्म लेगा। और क्यों होना पड़ेगा 0? क्योंकि इट विल टेक अगेन द फॉर्म ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0, सो दैट अगेन यू कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल देयर। और फिर से आपने जब डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डेरिवेटिव लिया आपने और टर्म्स को सेपरेट कर लिया, along with sin x you are getting minus 2a plus b and along with cos x you are getting, डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। बोले सर फिर से एल हॉस्पिटल नहीं है, एल हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमने यहाँ पर सेपरेट किया उसको और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x को 1 रख दिया, x कैंसिल हो रहा है, cos 0 इज 1, हमारी बात बन गई। एंड फाइनली जब सॉल्व किया वी आर गेटिंग टू इक्वेशन, वन इज ऑलरेडी 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, सेकंड इज माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 12, दोनों को सॉल्व किया एंड वी आर गेटिंग a इक्वल टू माइनस 11 बाई 2 एंड b इक्वल टू माइनस ऑफ 9 बाई 2। ये अप्रोच है। ये पॉइंट सबसे जरूरी था कि 1 प्लस ए माइनस बी आफ्टर कीपिंग लिमिट, if you are getting in the numerator 1 plus a minus b and denominator 0, then numerator must also be equals to 0, because then only it will come in the indeterminate form and then only you can apply the L'Hospital rule. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तो लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। लिमिट फाइनाइट नंबर 2 दिया है आपको, राइट। नाउ लुक फॉर द सेकंड अप्रोच। सबसे पहली बात तो हमने साइन क्यूब एक्स था तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x का यूज किया। एंड द नेक्स्ट अप्रोच जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम में फॉलो नहीं करना चाहिए, एंड द रीजन इज क्योंकि इसमें हम सीरीज का यूज कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट सम सीक्वेंसेस, सम सीरीज, e raised to power x, e raised to power minus x, log 1 plus x, log 1 minus x, sin x, cos x, tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0, सीरीज की हेल्प लिया हमने यहाँ पर, cos x और sin x, दिस x टाइम्स 1 प्लस a टाइम्स cos x, सीरीज फॉर cos x, 1 माइनस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x रेज़ टू पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस ऑफ। अब यहाँ पर भी एक बात जो ध्यान रखने लायक है और वो ये कि डिनोमिनेटर में जो डिग्री प्रेजेंट है x की, दैट इज हाईएस्ट डिग्री इज 3 देयर। एक बात तो तय कि न्यूमरेटर में जो भी x क्यूब से ग्रेटर टर्म होगी, ये सुनिएगा बात ध्यान से सब कुछ, न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स x क्यूब से ग्रेटर होंगी वो तो सीधे सीधे 0 बन जाएंगी। x रेज़ टू पावर 4 है डिनोमिनेटर में तो x क्यूब है, x रिमेनिंग रहेगा न्यूमरेटर में और x टेंड्स टू 0 पे इट विल मेक 0, समझ रहे हो ना। इसलिए ज्यादा आगे टर्म्स लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि वो तो सब 0 बनना है। इनफैक्ट देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग दिस आल्सो, क्योंकि इट इज आल्सो गोइंग टू बिकम 0 बिकॉज इन द डिनोमिनेटर इट इज x क्यूब, बट फिलहाल लिख रहा हूं मैं माइनस ऑफ b टाइम्स sin x की सीरीज हमने अप्लाई किया, x माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, अल्टरनेट प्लस माइनस है ना, डिवाइडेड बाय x क्यूब एंड दैट लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर 2। पहले समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट नेक्स्ट। अब हमने टर्म्स को सेपरेट किया, along with x you are getting 1 plus a, this is 1 plus a minus of b, then it is x cube, x को मल्टीप्लाई, x स्क्वायर भी तो होगा, आप चेक करिए इसमें x स्क्वायर नहीं है कहीं, x क्यूब along with x cube it is माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ना, माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड विद a, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं आप, along with x क्यूब यू आर गेटिंग प्लस b बाय फैक्टोरियल 3, प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा,
जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज गोइंग टू बी ऑफ x टू द पावर 5 बिकॉज x इज देयर इन द मल्टीप्लिकेशन. In fact, there is no point in writing the term for x to the power 5 because it is going to become 0 always, because in the denominator जो highest degree present है x की that is 3. तो न्यूमरेटर में x क्यूब से ग्रेटर जो भी होगी वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 बनने वाला है बिना कोई लोड के. x raised to power 5 along with x raised to power 5. What is that x raised to power 5? देख लें जरा. x raised to power 5 के साथ में it is a upon factorial 4 minus of b by factorial 5 and plus so on divided by x cube and that is a finite value 2. ठीक है यार, देखो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समय लग रहा है इसमें. आप जब करोगे ना एक्चुअल में अगर समझ में आ गया तो बहुत फास्ट ये हो पाएगा. देखिएगा, ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि ये टर्म दैट इज ऑफ नो यूज बिकॉज x रेज़ टू पावर 5 इज देयर. बोर्ड पे x रेज़ टू पावर 5 is there, it is x cube is there, x square will be remaining there, x tends to 0, it will become 0. So any term which is greater than x cube that is of no use, it is always going to become 0. Fine. और आप जानते हैं एक्सप्लेनेशन को, नया नहीं है आपके लिए. x टाइम्स 1 प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय x क्यूब. एक छोटी सी बात है, इफ 1 प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 या इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये x जो रहेगा ना x अपॉन एक्स क्यूब, भाई दिस इज x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. x से x कैंसिल होगा बट स्टिल 1 बाय एक्स स्क्वायर इज देयर इन द डिनोमिनेटर, 1 बाय एक्स स्क्वायर, और x टेंड्स टू 0 पे वो क्या बना देगा, दिस इज x. और ये x से कैंसिल करोगे बट x स्क्वायर इज स्टिल देयर इन द डिनोमिनेटर, और x टेंड्स टू 0 पे इट विल मेक अनडिफाइंड. लिमिट हमारी फाइनाइट है. इसका सीधा सा मतलब ये तय बात है कि 1 प्लस a माइनस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0 से होना आवश्यक है, अदरवाइज लिमिट विल बिकम अनडिफाइंड. और ये जो सेकंड टर्म है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, इट इज द टर्म विच इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. जो लिमिट आ रहा है आपको 2, 5, 10, 1, 0 वॉट एवर इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस टर्म ओनली, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ है और ये टर्म रिजल्ट देगी आपको. इट इज माइनस ऑफ a बाय फैक्टोरियल 2 प्लस b बाय फैक्टोरियल 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2. चेक करिएगा प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस अप्रोच से सॉल्व किया था, यू आर गेटिंग द सेम इक्वेशंस और नॉट. चेक कर लीजिएगा उसको. और ये बहुत आसानी से हो गया. इक्वेशंस तो 2 आना ही थी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे रिजल्ट आ जाएगा. किया क्या है, वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ sin x एंड cos x, वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ सीरीज. और ये समझाने के लिए इतना सब कुछ हो गया. आप फास्ट कर लोगे इसको, अगर समझ में आ गया तो तेजी से हो जाएगा वो. तो क्या ये 0 होना चाहिए, इससे लिमिट आ रही, बात खत्म. एल हॉस्पिटल में तो आपको 2 बार एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना पड़ा था, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात आई थी. दोनों आना चाहिए, ये बात जरूरी है. दोनों अप्रोच में कंफर्टेबल होना चाहिए. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इफ इट्स अ सब्जेक्टिव एग्जाम जस्ट फॉलो द फर्स्ट अप्रोच बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स फॉर दिस. इफ इट इज ऑब्जेक्टिव इट्स अप टू यू. क्लियर है आप लोगों को अप्रोच?